ভারত পাকিস্তানের মধ্যে উত্তেজনাময় পরিস্থিতি বর্তমান। এরই মাঝে ডিজিএমও লেফটেন্যান্ট জেনারেল রাজীব ঘাইয়ের মুখে ক্রিকেটের কথা। ভারতের বিমান ঘাঁটি ও লজিস্টিক্সের বিষয়ে বলতে গিয়ে লেফটেন্যান্ট জেনারেল রাজীব ঘাই বলেন, আমাদের বিমান ঘাঁটি এবং লজিস্টিক ব্যবস্থাকে লক্ষ্যবস্তু করা খুবই কঠিন। আমি দেখলাম বিরাট কোহলি সবেমাত্র টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন। তিনি আমার প্রিয় এক ক্রিকেটার। 1970 দশকে অস্ট্রেলিয়া এবং ইংল্যান্ডের মধ্যে অ্যাসেজ চলছিল। দুই অস্ট্রেলিয়ান বোলার জেফ থমসন ও ডেনিস লিলি ইংল্যান্ডের ব্যাটিং লাইন আপ ধ্বংস করে দেন। তারপরে অস্ট্রেলিয়া একটি প্রবাদ তৈরি করেছিল, ফ্রম অ্যাসেজ টু অ্যাসেজ, ফ্রম ডাস্ট টু ডাস্ট। ইফ থমো ডোন্ট গেট ইয়া দেন লিলি শেলি মাস্ট। শুনে নেওয়া যাক কি বলেছেন তিনি। एयरफील्ड या लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस को टारगेट कर पाए। ये जो डायग्राम आप अपने सामने देख रहे हैं, ये मुझे एक इंसिडेंट की याद दिला रहा है और मैं आपको इस उदाहरण के ज़रिए से एक ये एस्पेक्ट हाईलाइट करना चाहता हूँ। जब मैं स्कूल में था तो तकरीबन मेरे ख्याल से ये 70 का दशक था और उस समय इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आज शायद क्रिकेट की बात भी करनी चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा था कि विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। कई भारतीयों की तरह वो मेरे भी फेवरेट क्रिकेटर हैं। तो 70 के दशक में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की फेमस एशेज सीरीज़ चल रही थी और उस समय ऑस्ट्रेलिया के दो बहुत तेज़ गेंदबाज, जो कि क्रिकेट हिस्ट्री में बड़ा उनका नाम है, जेफ थॉमसन और डेनिस लिली, उन्होंने अंग्रेज़ी बैट्समैन और उनकी बैटिंग लाइनअप को तहस नहस कर दिया था। और ऑस्ट्रेलियंस ने उस समय एक कहावत निकाली थी, दैट फ्रॉम एशेज टू एशेज एंड फ्रॉम डस्ट टू डस्ट, इफ थॉमो डोंट गेट हियर देन लिली श्योरली मस्ट। और अगर आप इस लेयर को देखें तो आप समझ जाएंगे कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आप सारे सिस्टम्स को पार कर भी गए तो आपको फिर भी एयरफील्ड या लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन या जो भी चीज़ को आप टारगेट कर रहे हैं उसमें पहुँचने से पहले कोई ना कोई इस लेयर्ड ग्रिड का सिस्टम ज़रूर गिरा देगा। এদিকে সাংবাদিক বৈঠক এয়ার মার্শাল একে ভার্তি বলেন, এটা অন্য ধরনের যুদ্ধ ছিল, সমস্ত লড়াই আলাদাভাবে লড়া হয়, প্রযুক্তির উন্নতি হয়েছে, আমারও সেই উন্নয়নের আমরা অংশ হয়েছে, আমরা তৈরি ছিলাম, প্রশিক্ষিত ছিলাম। শুনে নেওয়া যাক কি বলেছেন তিনি। देखिए, जैसा मैंने कल कहा था कि इस लड़ाई के डिटेल्स अभी हम शेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ ऑपरेशनल डिटेल्स होंगे, कितने जहाज थे दोनों तरफ से, किस तरह की लड़ाई हुई। These are questions of technical details which we may not be able to share firstly, and which we may not be able to share to explain to you the way it needs to be explained. Suffice to say कि yes, ये एक दूसरी तरह का वॉरफेयर था and it is bound to happen. हम लोग पिछली लड़ाई, अगली जो कभी भी लड़ाई होगी, भगवान करे ना हो, लेकिन अभी यदि हुई तो ये पिछली लड़ाई की तरह नहीं होगी। हर एक लड़ाई जो है अलग तरीके से लड़ी जाती है और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रहे हैं। हम भी उस एडवांसमेंट्स के हिस्सा हैं, हमारे एडवर्सरीज भी हिस्सा हैं। सो इट इज़ अ कैट एंड माउस गेम एंड यू हैव टू बी अहेड ऑफ द कर्व टू बीट योर एडवर्सरी. So that is what is going to happen. So if you ask, was this different? Was this engagement different? Definitely it was different. And a lot of new aspects have come out, but we were prepared for it, we were trained for it, and we were equipped for it. That is the only aspect that I can share with you at this time. Thank you. ভারত পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধবিরতি চললেও রয়েছে উত্তেজনাময় পরিস্থিতি। ভারতের আতঙ্কে কার্যত ঘরে সিঁধিয়ে গিয়েছে পাকিস্তান। ভারতের প্রত্যাঘাতে বিপর্যস্ত পাকিস্তান, যার জেরে বলতে গেলে ভারতের হাতে পায়ে ধরে যুদ্ধবিরতির জন্য আর্জি জানিয়েছে পাকিস্তান। উল্লেখ্য, কিছুদিন আগেও অবশ্য বড় বড় কথা শোনা গিয়েছে
পাকিস্তানের নেতা মন্ত্রীদের মুখে। নিজেদের অস্ত্রের আস্ফালন করতেও শোনা যায় তাদের। যদিও যুদ্ধের ময়দানে ভারত যে দাপিয়ে বেরিয়েছে তার নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। সে যুদ্ধ বিমানই হোক বা মিসাইল, সব ক্ষেত্রেই ভারতের কাছে কি কি রয়েছে তার ঝলক দেখিয়ে দিয়েছে বায়ুসেনা। সোমবার দুপুরে ডিজিএমও সাংবাদিক বৈঠকে তা তুলে ধরা হয়। একবার দেখাই আপনাদেরকে সামরিক ক্ষমতার একটা ঝলক। मरना होगा। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। कि तू वचन नहीं तूने माना, मैं भी का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ अंतिम संकल्प। ভারত পাকিস্তানের মধ্যে উত্তেজনাময় পরিস্থিতি বর্তমান। এরই মাঝে ডিজিএমও লেফটেন্যান্ট জেনারেল রাজীব ঘাইয়ের মুখে ক্রিকেটের কথা। ভারতের বিমান ঘাঁটি ও লজিস্টিক্সের বিষয়ে বলতে গিয়ে তিনি বলছেন, আমাদের বিমান ঘাঁটি এবং লজিস্টিক্স ব্যবস্থাকে লক্ষ্যবস্তু করা খুবই কঠিন। কি বলেছেন তিনি, শোনাব আপনাদের। एयरफील्ड या लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस को टारगेट कर पाए। ये जो डायग्राम आप अपने सामने देख रहे हैं, ये मुझे एक इंसिडेंट की याद दिला रहा है। और मैं आपको इस उदाहरण के ज़रिए से एक ये एस्पेक्ट हाईलाइट करना चाहता हूँ। जब मैं स्कूल में था तो तकरीबन मेरे ख्याल से ये 70 का दशक था, और उस समय इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, आज शायद क्रिकेट की बात भी करनी चाहिए क्योंकि मैं देख रहा था कि विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। कई भारतीयों की तरह वो मेरे भी फेवरेट क्रिकेटर हैं। तो 70 के दशक में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की फेमस एशेज सीरीज़ चल रही थी, और उस समय ऑस्ट्रेलिया के दो बहुत तेज़ गेंदबाज जो कि क्रिकेट हिस्ट्री में बड़ा उनका नाम है, जेफ थॉमसन और डेनिस लिली, उन्होंने अंग्रेज़ी बैट्समैन और उनकी बैटिंग लाइनअप को तहस नहस कर दिया था। और ऑस्ट्रेलियंस ने उस समय एक कहावत निकाली थी, दैट फ्रॉम एशेज टू एशेज एंड फ्रॉम डस्ट टू डस्ट, इफ थॉमो डोंट गेट हियर देन लिली श्योरली मस्ट। অন্যান্য খবরের আপডেটের জন্য অবশ্যই নজর রাখুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব স্ট্রিমিংয়ে। লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।